बेटे है वह जीप आगे जाकर क्या करते कि रुकती है ಏನು ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಕುಂತಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜೀಪ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತದ हम उतरते हैं वे लोग उतर गए ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ बगल में एक विशाल गोलाकार ವಿಶಾಲ್ ಪತ್ತರ್ ಹೇ ಸೊ ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲೇನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಸಂಗಮ ಬತಾತೆ ಹೇ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಗಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ यह ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೇ ಇದೇನು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗನ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಸಚ್ಮುಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಗುಫಾ ಎ ಬಿ ಹೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಗುಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆಗಳು ಕೇವ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಹೆಗಳ ಸಹಿತನೂ ಇದಾವೆ हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है ಅವರ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀಪ್ ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಗುಹೆಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತದ गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಶಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅರವೆ ಸುತ್ತೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಓಕೆ ಕಂದಿಲನ್ನ ಬಳಸಿನೇ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತು संगमा का एक साथी कहता है हमने मशाले जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे ಅವಾಗ ಆ ಸಂಗಮನ ಗೆಳೆಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮಶಾಲ್ಗಳನ್ನ ದಿವಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋನು ಬೆಳಗಿಸೋನು ಮತ್ತು ಈ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಉಪ್ಪರ್ ನೀಚೆ ಪತ್ತರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಬದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿನಿಂದನೇ ಇದ್ದವು ಆ ಒಂದು ಗುಹೆಗಳು ಸದ್ಯವ್ ಸೆ ಎ ಗುಫಾಯೆ ಇಸಿ ತರಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಇದೇ ತರನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರು ದೂರ್ ಬಹು ದೂರ್ ತಕ್ ಚಲಿ ಗೈ ಹೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದನೆಯವಾಗಿ ದೂರಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕುಚ್ ದೂರ್ ಜಾಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡ್ತೆ ಹೇ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಜೈಸೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕ್ ಸೆ ಲೌಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗುಹೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗಮ ಅವರು ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪಾಠ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಪಾಠ ಮುಗೀತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಇದೇನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಳಿನೇ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗುಹೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದನೆಯವಾಗಿ ಹೊರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನು ಪಾಠ ಮುಗೀತು ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇದಾವೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ಕಿಸ್ ರಾಜ್ಯಕೋ ಬಾದಲೋ ಕಾ ಘರ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೋಡಗಳ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯಕೋ ಬಾದಲೋ ಕಾ ಘರ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ जीप में लेखक के साथ कौन कौन बैठे हैं आ जीपिನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರು ಸೊ ಏಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮ और उनके दो दोस्त ಸೊ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಗೆಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆನೆ ಆ जीಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಘಾಲಯ के 3 पर्वतीय अंचलों के नाम लिखिए ಸೊ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪರ್ವತದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಖಾಸಿ ಪರ್ವತ್ गारो पर्वत ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯಾ पर्वत ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಮೇಘಾಲಯ में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೃ ಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪಾರಿವಾರಿಕ್ ಸೊ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಐದನೇದಿದೆ ನೋಹ ಸಂಗತಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಪಾत किस नाम से लोकप्रिय है और उत्तर है बच्चों नोह संगतियांग प्रपात मासमाई नाम से लोकप्रिय है प्रश्न 6 है गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है
और उत्तर था कि गारो समूह को बोडो जाति का एक अंग माना जाता है। यहाँ तक थे बच्चों 6 प्रश्न और 6 उत्तर। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर 2-3 ವಾಕ್ಯೋं में उत्तर लिखिए। 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ। बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? उत्तर है बिजली उत्पादन के बारे में संगमा यह कहते हैं कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते हैं। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से झगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। प्रश्न 2, माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखना है। उत्तर था कि स्त्रियों का बाजार माइती बाजार कहलाता है। ये स्त्रियों सुबह से लेकर शाम तक व्यापार करती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद इनमें नहीं होता। प्रश्न 3, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? उत्तर है चेरापूंजी एक पर्वतीय क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए चेरापूंजी प्रसिद्ध है। चेरापूंजी समुद्र की तरह कोई 1300 मीटर ऊपर है। यहाँ अनेक जलप्रपात है। यह चेरापूंजी की विशेषता थी। चौथा प्रश्न है मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है? यानी मासमाई गांव की गुफाएं बहुत ही अंधेरी है। अंदर मशाल या टार्च के बिना अंदर जाना संभव नहीं है और ये गुफाएं लंबी और प्राचीन काल की है। था बच्चों, अब आगे चलेंगे गतिविधि 3 पर द्वित्व शब्दों को आपको पाठ से चुनकर लिखना है। यहाँ पर है उमड़ते घुमड़ते एक उदाहरण दिए गए, इसी प्रकार के आपको द्वित्व शब्द को लिखना है। ऊंचा नीचा, रीति रिवाज, कल कल, छल छल, अगल बगल, ऊपर नीचे, इस प्रकार हम इनको कह सकते हैं कि बच्चों द्वित्व शब्द कह सकते हैं। आगे चलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। देखेंगे रिक्त स्थान के लिए पूर्ति करने के लिए 5 प्रश्न है। प्रश्न और उत्तर दोनों ही है। पहला है मेघालय की राजधानी है शिलांग। दूसरा चेरापूंजी शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर इज 53। मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था डैश है। उत्तर है मातृसत्तात्मक। प्रश्न 4 चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई डैश मीटर ऊपर है। उत्तर है 1300। प्रश्न 5 खासियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है और इसका उत्तर था कि बच्चों सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सम्मान। क्वेश्चन नंबर 5 है जोड़कर लिखा गया है। अ से लेकर ब पंक्तियों को यहाँ पर सुमेलित किया गया है। पहला है चेरापूंजी की सड़कें, इसका उत्तर डी कुहरे से घिरी हुई है। दूसरा है तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा करती हैं। तीसरा चेरापूंजी में, इसका उत्तर ई साल भर वर्षा होती रहती है। और नंबर 4 नोंग फ्रेम है और इसका उत्तर बी खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। और 5वां है बेहरडेन खलाम, यह जयंतिया पहाड़ियों का उत्सव है। आगे की गतिविधि इस प्रकार है बच्चों। आगे है बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द को बनाना है। यानी बे उपसर्ग को लगाना है फिर विलोम शब्द को तैयार करना है। रोक टोक बे रोक टोक, इज्जत बे इज्जत, रहम बे रहम, ईमान बे ईमान, कसूर बे कसूर, वफा बे वफा, शक बे शक, ताज बे ताज, सहारा बे सहारा, फिर अंत में है बच्चों काबू है, फिर काबू का होगा बेकाबू। इस प्रकार 10 विलोम शब्द को आपको बे उपसर्ग को जोड़कर यानी पहले उपसर्ग यानी पहले लगाकर विलोम शब्द को तैयार करना था। आगे गतिविधि इस प्रकार है। 7वां यात्रा पर वाक्यों को सही क्रम पर लगाया गया है। यानी यहाँ पर एक यात्रा के लिए कई वाक्य है, इसको क्या करना है कि आपको सही क्रम में लगाना है। उत्तर ही यहाँ पर है। इसका पहला होता है कि चौथा है यात्रा स्थल को चुनना, फिर 5वां है बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना, फिर दूसरा आएगा छुट्टी लेना, फिर पहला होगा होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना, फिर तीसरा होगा कपड़े सामान बांध लेना। यह ताकि 7वां। अब 8वां गतिविधि पर चलेंगे। 8वां गतिविधि इस प्रकार है। प्रकृति के कुछ अन्य लाभों की सूची आपको करनी है। मैं यहाँ पर खाली आपको मुद्दे ही लाया हूँ। मुद्दे इस प्रकार है। पहला कि मानव का जीवन समर्थन करने के लिए जरूरी है, यानी मनुष्य यहाँ पर जीवन निभाने के लिए जो आवश्यक है, जो आवश्यक वस्तुओं की जो उपलब्ध हमारे इस प्रकृति द्वारा हमें मिलती है, यह था पहला पॉइंट।
दूसरा है पर्यटन स्थल। अनेक यहाँ पर पर्यटन स्थल मिलते हैं प्रकृति पर, इससे हम क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तीसरा बहुमूल्य पदार्थ, जैसे लकड़ी मिलेगी, ओके, अलग अलग प्रकार की दवाओं के मिलेगी, पत्तियां मिलेगी। इस प्रकार बहुमूल्य पदार्थों को भी मानव के लिए उपलब्ध किया जाएगा इस प्रकृति के द्वारा। और चौथा है कि बच्चों प्राकृतिक सुंदरता, अलग अलग रमणीय स्थलों को भी हम क्या कर सकते हैं कि भेंट दे सकते हैं। यह थे कि प्रकृति से मिलने वाले कुछ लाभों की सूची। अगला चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर यात्रा का वर्णन करना। यानी यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसी प्रश्न का उत्तर आपको क्या करने के आगे लिखना है और उसका यात्रा का वर्णन हो गया। प्रश्न और उत्तर है, पहला कहाँ गए थे, और मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिया हूँ मैसूर। किसके साथ गए थे, अभिभावक यानी पेरेंट्स के साथ। तीसरा कब गए थे, गर्मियों की छुट्टी के दिनों में। चौथा कैसे गए थे, रेल से। फिर उस स्थान में क्या क्या देखा, राजमहल देखा, चिड़ियाघर देखा, ओके, अलग अलग प्रकार के स्थलों को आपको वहाँ पर नाम लिखना है। कोई विशेष अनुभव, हम बहुत मजा उठाया और स्थानों की महत्ता के बारे में जान लिए। ये ताकि जो यात्रा का स्थान के बारे में वर्णन करना। अगले चलेंगे 10 में है, अतिवृष्टि अनावृष्टि से होने वाली हानियों की आपको क्या करना है कि लिखना था। फर्स्ट है, एक तरफ आपको अतिवृष्टि से होने वाली हानि लिखनी है और आगे की तरफ अनावृष्टि से होने वाली हानियों को भी आपको क्या करना है कि चिन्हित करना है, लिखना है। अतिवृष्टि से फसल बर्बाद होती है, फिर अनावृष्टि से जो फसल है वह सूख जाती है। पहला यह तो अंतर है। दूसरा है, अतिवृष्टि से किसानों को नुकसान होती है, लेकिन अनावृष्टि से किसानों की स्थिति दयनीय होती है, बहुत ही शोचनीय होती है, सोचनीय होती है। फिर अतिवृष्टि से मजदूरों को काम नहीं मिलता है, फिर अनावृष्टि से पक्षी और जानवर भूखे मरते हैं। यह था इसका अंतर। अगले चलेंगे प्रश्न 11 पर, अनुरूपता है। 4 प्रश्न है, आपको अनुरूपता को पहले 2 शब्दों के संबंध को समझना है, फिर तीसरा शब्द का संबंध का उत्तर आपको लिखना है। कर्नाटक बेंगलुरु है, फिर मेघालय की राजधानी शिलांग है। राजस्थान रेत का प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, फिर मेघालय पर्वतीय प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर इम्फाल यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चौथा नोंगक्रेम, यह नृत्य है, फिर बेहरडेन खलाम, यह एक उत्सव का नाम है। यह था पूरी तरह से अभ्यास की गतिविधि पर। फिर थोड़ा सा भाषा ज्ञान पर चलेंगे। आगे की जो गतिविधि भाषा ज्ञान है, इसमें पहला है आपको संधि विच्छेद करना और संधि का नाम लिखना है। देहांत है, इसका विच्छेद देह प्लस अंत और यह दीर्घ संधि के लिए उदाहरण है। स्वेच्छा है, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, यह गुण संधि के लिए उदाहरण है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक, एन संधि के लिए उदाहरण है। महोन्नत, महा प्लस उन्नत महोन्नत, ये भी गुण संधि के लिए उदाहरण है। फिर वीरांगना में वीर प्लस अंगना वीरांगना, दीर्घ संधि है। फिर नायिका में नई प्लस इका नायिका, यह अयादि संधि के लिए उदाहरण है। दूसरा है संधि कीजिए, यहाँ पर संधि आपको क्या करना है कि बनाना है। मत प्लस अनुसार, दोनों से मिलकर हुआ मतानुसार। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। वीर प्लस उचित वीरोचित। लोक प्लस उपकार लोकोपकार। महा प्लस उदय महोदय महा प्लस ऋषि महर्षि। सदा प्लस एव सदैव। फिर लोक प्लस ऐश्वर्य लोकैश्वर्य। शो प्लस अन शयन। इस प्रकार आपको क्या करना था कि संधि विच्छेदित शब्द को लेकर संधि पद में लिखना था। तीसरा है उदाहरण के अनुसार लिखना है। यहाँ पर उदाहरण है देव प्लस आलय देवालय, यानी संधि यहाँ पर आपको शब्द विच्छेद कर दिया गया है। आपको क्या करना है कि संधि पद में समस्त पद में लिखना है। गोल प्लस आकार गोलाकार। सहन प्लस अनुभूति सहानुभूति। फिर रजनी प्लस ईश रजनीश। सु प्लस आगत स्वागत। अति प्लस अंत अत्यंत। फिर अनु प्लस अय अनुवय। भ प्लस अन भवन। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। फिर पौ प्लस अक पावक। इस प्रकार पूरी तरह से अभ्यास के गतिविधि और भाषा ज्ञान के संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए मैं प्रयास किया हूँ। बच्चों यहाँ तक पूरी तरह से पाठ का विधा, आशय, नए शब्दों के अर्थ, पाठ का सारांश,
हिंदी और कन्नड़ में भी मैं आपको समझाने के लिए प्रयास किया हूँ और पाठ के अंत में रहे अभ्यास की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से चर्चा किया हूँ। आशा है कि यह पाठ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, पाठ समझ आया होगा। और आपको देखना है, अच्छा लगा है तो लाइक करना है, आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर भी करना है और कमेंट करने के लिए न भूलिए। मिलेंगे और भी नए नए पाठों के वीडियो में।